Pascal triangle again. Okay? Why that formula works? Why हम ये भी कहते हैं कि इन दोनों को ऐड करें तो ये चीज आती है ना? Look at this. If you remember, हमने कहा था n choose k is actually equal to what? n minus 1 choose k plus n minus 1 choose या एक k minus 1 का तो यहाँ पर क्या आ रहेगा k. Look at this. What is 3 choose 1? 3 choose 1 means 2 choose 0 plus 2 choose 1. What is 3 choose 2? 3 choose 2 is nothing but 2 choose 1 plus 2 choose 1. What is 4 choose 2? 4 choose 2 is 3 choose 1 plus 3 choose 2. Okay? What is 4 choose 3? Is 3 choose 2 plus 3 choose 2. Does it make sense? And that's how Pascal triangle works. Okay? Alright? तो actually ये आपको binomial expansion, ये आपको expansion पता लगती है, ठीक है? ये हमने expansion निकाली है, ये 4 choose 0, 4 choose 1, everybody understand this? ये कैसे पता है, ठीक है? And look at this now. In general, we can talk like this. Okay? अगर if you want to calculate x plus y, if you zoom करो, if you want to calculate x plus y to the power n, that is essentially nothing but the summation of what? N choose j, where j is starting from 0 to n. Why 0 to n? Because y आपका 0 से शुरू होता है, ये y की पावर 0 से शुरू होता है, वो y की पावर n तक जाता है. Okay? Alright? और यहाँ कहता है कि actually n choose 0. ये actually ये वाला फॉर्मूला जो लिखा हुआ है, ये किसके ऊपर हमारा हमने दो तरीकों से किया था ना? ये किसके ऊपर बेस पे करता है? y के ऊपर. ठीक है? y की पावर 0 का मतलब क्या है? essentially इसने क्या आंसर क्या चूज किया है? इसने x's, इसने there are how many possibilities कि आपने y एक भी चूज ना किया, क्या n में से 0, आपके पास n choices थी, उनमें से आपने एक भी y चूज किया, so n choose 0 possibility टाइम x की पावर n हो जाएगा. फिर क्या बनेगा? n choose 1, आपने एक y सेलेक्ट किया है, ठीक है? फिर क्या होगा? आपने 3 y सेलेक्ट, 2 y सेलेक्ट किया, और ये क्या है? आपने सारे ही y सेलेक्ट कर. Okay? That leads us to this theorem. It's called binomial theorem, and this expansion is called binomial expansion. Okay? All right? You was right? Yes. You can easily calculate कि अगर in general हमारी टर्म क्या होगी? In general इस टर्म को क्या कहेंगे? हम इस टर्म को कहेंगे कि अगर ये है x की पावर r, तो y जो होगी वो क्या हो जाएगी? अगर पहली टर्म जो है वो x की पावर कैसे करेंगे? अगर ये पहली टर्म जो है वो अगर y जो है वो r हो गया तो x क्या होगा? 0. हाँ? टोटल हमारे पास था ना, हम निकालना चाहते हैं x plus y की पावर n. ओके? टोटल निकालना चाहते हैं x plus y की पावर n. मैं कह रहा हूँ अगर ये पूरी एक्सपेंशन होती भी आ रही है, मैं x की y की पावर r पे पहुंच गया, n minus ये हो जाएगा n minus r. Essentially इसका कोएफिशिएंट किसके बराबर होगा? इसका जो कोएफिशिएंट होगा किसके बराबर होगा? n choose ये बात सुना? ठीक है? Does it make sense? ठीक है? Or you can do the other way around also. n to the minus. हाँ? ये मैं जनरल बात ही कर रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल n की वैल्यू 100 थी, क्या थी? n की वैल्यू यहाँ पर 100 थी, ठीक है? और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मैंने x की पावर 25 निकालनी है और y की पावर लेट्स से उसको 75. इसका मेरा कोएफिशिएंट क्या होगा? जी आप मुझे बता सकते हैं क्या होगा? 100 choose 25 or 100 choose 75. No, 100 choose 75. 100 choose 100 choose 75. ओके? या आप 100 choose 25. ठीक? वो क्यों इक्वल है? क्योंकि पता है वो दोनों इक्वल है. So it doesn't matter क्या. ठीक है? That's perfectly fine now. अच्छा, using this binomial theorem, I can actually prove this quantity. You remember this? अभी हमने combinatorial proof किया था ना? है ना? Using this theorem, I can prove this quantity again. How?
1 plus 1 power. Excellent. Put this x to be 1 and put this y to be 1. What is the left quantity equal to? 2 की power. What is this right quantity equal to? n choose 0, 1, n choose 1, 1 की power जो मर्जी ले लो, 1 की power जो मर्जी ले लो, 1 ही रहेगी, है ना? ये सारी की सारी quantities जो होंगी वो 1 हो जाएंगी. It's nothing but summation of all n choose case. Okay? And that quantity is equal to 2 power. Make sense? देखिए तो using this binomial expansion, देखिए हमने दोबारा से अपना ये पावर सेट वाला जो समेशन है वो प्रूव कर दिया. Okay? Does it make sense? Alright? मैं को एक और करके प्रूव करते हैं. ये देखिए. How do I prove this? बस पहले ये करो प्रूव करें. Don't look at this. -1 power k. y -1 पावर k और ये हो जाएगा n choose k और ये हो जाएगा 0. Why this is true? हाँ जी क्यों? सर ये n even भी होना चाहिए. n even or doesn't matter. Even or doesn't matter. आखिरी और टाइम जो है वो माइनस में चला जाएगा. ये क्वांटिटी कह रहा है कि क्वांटिटी बराबर होती है -0 के. यानी वो कहना ये चाह रहा है कि -1 एक्चुअली मैं अपना प्रूव करना चाह रहा हूँ. मैं प्रूव करना चाह रहा हूँ this quantity. You know what is this quantity? n0 n2 n4 n6 even sets. n choose 1, n choose 3, n choose 5, n choose 7. What is this quantity equal to? Real life. What is it? What is the left quantity? हाँ? Even sets. वो कहता है even sets का count निकालो. तो दूसरे और तो बचे. odd sets के count के बराबर आएगा. समझ सर इवन सेट वो कह रहा है even sets का count निकालो. कितने मेरे sets हैं जो even है? बाकी और जो odd है. कहता है वो दोनों के दोनों बराबर आएंगे. क्यों बराबर आएंगे? हाँ? ना टोटल इवन 2 पावर n है तो नहीं and even दो side odd हो सकता है. That's not right. That's not right at all. 1 to 1 cos No, one is not. and Actually, it's direct application of this. G, look at this. X plus y power है ना n और ये expand किया हुआ है ना? Expansion मैंने लिखा. What if कि मैं x की value 1 कहूँ और y की value -1 कहूँ? What is this quantity equal to? 0. This we know. Left quantity we know is actually equal to 0. Okay? And let me expand this part. Okay? This will become x हमारे वैसे ही क्या है? 1 है ना? वो तो गायब हो जाएंगे. सिर्फ हमारा क्या बाकी बच जाएगा? y बाकी बच जाएगा. So that is essentially equal to. आंसर बताओ क्या बन जाएगा? n choose 0 1 है ना? क्योंकि y की पावर वो क्या है? y की पावर 0 है, यानी कि ये क्या हो जाएगा? 1 की पावर 1, 1 की पावर n और -1 की पावर 0. ठीक है? -1 की पावर 0 कितनी होती है? +1 होती है. Yes sir. Okay? What about next? That will become n choose 1 और यहाँ क्या हो जाएगा? 1 की पावर n -1. Actually 1 को लिखने की जरूरत ही नहीं है ना? और फिर ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -1 की पावर हाँ? 1. Actually इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं लिख देता हूँ. ठीक है? Essentially जो चीज मैटर करती है वो -1 है ना? जी, can you tell me the next term? That will be n choose 2 -1 की पावर 2 plus so on and so forth. Can I write this thing as I started from या k कह लें? k started from 0 से कहाँ तक जाएगा? n तक जाएगा. -1 की पावर होगी k और यहाँ क्या आ रहा है? n choose दोबारा बता इसमें मेरा समझ नहीं क्या समझ रहे हैं? मतलब एक आपने फार्मूला में देखो ना ये क्या हुआ है? ये 0 है, ये पावर भी 0.
ये पावर ये 1 है, पावर भी 1 है, ये 2 है, ये पावर भी 2 है। सो एक्चुअली k स्टार्ट हो रहा है 0 से लेकर n तक, क्योंकि इसकी पावर ने 0 से शुरू होना है और n तक जाना है ना। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर जो आ रहा है यानी k वही इसकी -1 की पावर आ रही है। ओके, हाँ अच्छे कर देते हैं। ये मैं तो लिख रहा हूँ, इसको मैं एक्सपैंड करता हूँ आगे, ये क्या हो रहा है बताओ, 3 लगे बताओ, 3 का क्या होगी, and 3 n choose 3 और i क्या हो जाएगा -1 की पावर -1 की पावर 3 प्लस डा। अब मैं पूरी समस्या को लिखना है, तो मैं इन जनरल देखूँ तो ये ऊपर वाली चीज तो वही रहती है, नहीं रहती, नहीं नीचे वाली चीज 0 1 2 से वैरी कर रही है, तो इसका लूप नहीं लगा होता फॉर लूप। इस तरह यहाँ पर k आ रहा है, जो k 0 से लेकर n तक जा रहा है ना। और -1 की पावर क्या होती जा रही है, पहले 0 थी, फिर 1 थी, फिर 2 थी, फिर एक्चुअली बस में ठीक है ना। ये मैं प्रूव करता हूँ है ना, मैंने एक्चुअली उल्टा लिख दिया, ठीक है। अच्छा अब एक और बात देखो, हाँ इसी चीज को मैं अभी नहीं लिखता, ठीक है। इसमें अगर तुम देखो तो ये क्वांटिटी 0 है, ये हो जाएगी n choose 0, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n choose 1 और ये हो जाएगा -1 और -1 की पावर जो ऑड होती है वो क्या होती है -1, ये -1 प्लस ये क्या होगा, -1 की पावर 2 2 क्या होगा +1, दिस मींस n choose 2 और ये क्या आएगा, ये दोबारा माइनस हो जाएगा। एक्चुअली अगर तुम देखो तो अगली टर्म दोबारा से ये पॉजिटिव हो जाएगी, तो हर इवन जो है वो क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, और हर ऑड जो है वो क्या आ रही है, नेगेटिव। ऑड सारी इस तरह है, तो वो क्या हो जाएगा, n choose 1 प्लस n choose 3 प्लस n choose 5 प्लस डा is equal to n choose 0 प्लस n choose 2 प्लस n choose 4, which means all evens are actually equal to all odds. Because so all subsets जो के even हैं उनको मैं काउंट करूं और all subsets जो odd है उनको मैं काउंट करूं, तो वो दोनों के दोनों हमेशा सेम हैं। सर ऊपर 1 प्लस -1 ठीक है, ताकि ये सेकंड टर्म हमारी -1, y हमारा -1 हो रहा है, ओके। हमें कोई और वैल्यू दी 1 प्लस -2 जस्ट आई डोंट नो, ये क्रॉनिक प्रूव करेंगे। नहीं, हमने इसको अगर जब हम -1 बनाना चाह रहे हैं, हाँ 0 मैं एक्चुअली ये चीज प्रूव करना चाहता हूं, दो चीजें प्रूव हो गई है ओके। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम में एक्चुअली ये चीज क्वांटिटी प्रूव करते हैं, उसको 0 एक्चुअली एक और भी क्वांटिटी है, वो भी तुम आराम से प्रूव कर सकते हो। इसके मेरे ख्याल में इफ आई रिमेंबर वी विल गिव you try to set it's actually equal to it's actually equal to this, 3 power n is equal to summation of k started from 0 to n 2 power k 2 की पावर k, और यहाँ क्या आएगा and 2 okay. Can you tell me why this quantity is equal to this quantity? हाँ जी, can you tell me what is why this quantity are the same? हाँ this is 1 plus 2, okay. 1 हमेशा हाई होता जाएगा, तो 2 की पावर, ठीक है। So these two quantities are exactly the same, okay. Okay. All right. Let me go back to that combiner. मेरे ख्याल में अब तो हमने algebraic वाला काम था वो कर लिया है, यानी nasty काम हमने कर लिया है। Let me, okay, please be very attentive, okay? We need at least 20 more minutes, okay? Please look at this now very carefully, okay? I want to prove that this quantity is actually equal to this one, okay?
this quantity is actually equal to this one. Everybody understand this? Okay? So by the way, छोटी सी चीज़ है नोट करने की कि ये पहले क्या कहता है, n में से r चूज करता है, फिर मल्टीप्लाई करता है क्या r में से k चूज करता है. So that something is obvious. What is obvious? सर वो उसके बाद कि ये जो r है वो इस k से बड़ा है r बड़ा होना चाहिए ना, बड़ी चीज में से छोटी चीज निकल सकती है ना. तो ऑब्वियस बात है कि जो k है वो छोटा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए r के, और r ऑफ कोर्स छोटा होना चाहिए और लेस होना चाहिए n के. ठीक है? आप मैंने दोनों का आर्गुमेंट प्लीज मुझे बताएं कैसा हो. साथ ये जो पास का ट्रायंगल है ये हमारे एक कंपटीशन था, उसके अंदर ये सिर्फ प्रिंट करनी पड़ेगी. पेज ऑप्शन से जीरो ये कैसे प्रिंट, और एक्चुअली ये बड़ी जबरदस्त डीपी बनती है मेमोराइजेशन. ठीक है? पिछले आंसर दोबारा कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है, वो पिछले अरे में सेव कर लो और बता. ठीक है? कभी से पुराने क्वेश्चन I will going to show you, we will going to show actually कि ये दोनों क्वांटिटी एग्जैक्टली सेम है. Why they same? कौन सी ये क्वांटिटी is actually equal to this quantity. Why these two quantities are the same? एक तो है ना हम इसको अलजेब्रिकली प्रूव करते हैं. अब ये अच्छा फैक्टोरियल लेता है, अच्छा फैक्टोरियल तो बड़ी लिखी नहीं करे. नहीं, मैं ये नहीं कह रहा. मैं कह रहा हूँ कि मुझे कॉम्बिनेटोरियल प्रूफ चाहिए. ये दोनों क्वांटिटीज एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए. ओके? ठीक है? थोड़े चूज करनी है, मतलब n में से k चूज करनी है. नहीं, पहले हमने n में से r चूज किया. पहले मुझे कोई इसका आर्गुमेंट दो. ये क्या चीज है? n में से 50 स्टूडेंट्स हैं. 50 लोग थे, ठीक है? वो 50 लोग चूज किया, ज्यादा चूज किया. वही 20 चूज कर. फिर क्या किया हमने? फिर उनमें से 20 में से हमने 10 चूज किया. ओके? एक्चुअली अगर तुम देखो तो हमने तो क्या हो रहा है कि हमने पहले एक वो शॉर्ट लिस्ट नहीं करते. हाँ जी. आपने पहले एक बड़े सबसेट में से छोटा सबसेट निकाला, फिर उसमें से दोबारा छोटा सबसेट निकाला. यानी कि समझ में आएगा क्या कहना चाह रहा है? लुक एट दिस, ट्राई टू विजुअलाइज दिस. आपने 50 लोगों का स्क्वाड था, आपने 50 लोगों में से पहले 15 लोग सेलेक्ट किए. ये बात सुनाई? पहले 15 लोग सेलेक्ट किए. ओके? अच्छा, फिर उन 15 में से खिलाने कितने? ऐसे होता है ना, पाकिस्तान में ODI का स्क्वाड होता है तो उसमें से आप 11 लोग भेजते हैं. तो एक्चुअली पहले आप 15 शॉर्टलिस्ट करते हैं 50 में से. 50 में से मैंने 15 लोगों को खिलाना है और फिर उन 15 में से 11 लोगों को खिलाना है. ये बात सुनाई? यानी पहले 50 में से मैंने 15 लोगों को सेलेक्ट किया, फिर उन 15 में से मैंने क्या सेलेक्ट किया? 11 लोगों को सेलेक्ट किया. जॉब इंटरव्यू ऐसे होता है. यू एब्सोल्यूट राइट. तो एक तरीका और भी है. वो तरीका क्या है? So look at this. के मैंने हाँ? 50 में से पहले मैं क्या चूज करूँ? पहले मैं 11 चूज करूँ. और फिर अब मैं 11 अब वो 11 मैं निकाल चुका हूँ. So let me remove those K's. Okay? और अब मुझे एक्चुअली n minus k में से कितने सेलेक्ट करने हैं? R तो कंफर्म हो गया ये तो 11 निकल चुके. तो 4 मुझे और निकालने तो r minus k. Okay? These two quantities are exactly the same. हाँ? यानी कि मैं एक्चुअली एक तरीका सोचने का ये है कि मैं कहता हूँ जी, फॉर एग्जांपल मैंने पूरी 100 लोग थे, 50 लोग थे, उन 50 लोगों में से 15 लोगों की टीम सेलेक्ट की. फिर उन टीम में से मैंने जो फॉर एग्जांपल जो मेरी कंफर्म टीम थी वो मैंने ली. दूसरा तरीका एक और है कि पहले मैं कंफर्म टीम सेलेक्ट कर लूं और फिर मैं कहूँ यार अगर इसमें कोई जख्मी हो जाए तो मुझे तो 15 की स्क्वाड बतानी है ना. तो मैं कहूँ ये तो मेरी कंफर्म है और उसके बाद मैं क्या कर दूं? No, I am counting exactly the same thing.
तो पहले मैं ये काम करूँ या पहले नहीं? ये बात है? तो these two quantities are exactly the same. ये बात है? ठीक है? Everybody understand this? हाँ? अगर पेपर में क्वेश्चन है तो हम लोग के साथ लिखेंगे। आपने अंग्रेजी में लिखना है, ठीक है? ये जाके बुक पढ़े, बुक में जिस तरह कॉम्बिनेटोरियल ऑप्शन बनाया, I'm going to show you. स्टेटमेंट्स में स्टेटमेंट में इसका आप आर्गुमेंट बताएंगे, तो ये आर्गुमेंट मैं ये क्वांटिटी को करूँगा, ये क्वांटिटी एक्चुअली बराबर है एक और तरीके से, और वो तरीका मैं पहले मैं ये करूँ, और फिर उसकी हर एक के लिए मुझे ये सेट करना, ठीक हो गया? ऑलराइट, नाउ लुक एट दिस, ये एक्चुअली सोल्यूशन लिखा है, हाउ मेनी सब कमिटीज ऑफ साइज k आर पॉसिबल, ओके? Within committee of size are selected from n people, ठीक है? यही क्या है ना, ठीक है? और ये दोनों की काउंटिंग ऑर्डर में सर अगर फोड़ो के में से भी हम लोगों ने चूज करना अभी रुको प्लीज, नाउ लुक एट दिस, लेट मी शो यू अनदर आइडिया, ओके? इसको हमारा मशहूर नाम से कहते हैं वांडर मोंडेज आइडेंटिटी, ना आई थिंक इसका ये कोई जैसा रशियन नाम है, रशियन में रशियन नाम है, वो आमिर बड़ा अच्छा जी, नाम लुक एट दिस, ये लिखा है, मुझे प्रूव करना है ये दोनों क्वांटिटी बराबर है, पहले ये बताओ कि है क्या? एक दो क्वालिटीज हैं पर एक क्वांटिटी है m और n, ठीक है? उनमें से हमने r सेलेक्ट किया, ठीक है? So m plus n choose r. By the way, we can easily assume कि m and n both are greater than r, ठीक है? Greater than or अच्छा, अब वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है this quantity is actually equal to summation को मैं एक्सप्लेन करूँगा। सर जरूरी तो नहीं है कि ग्रेटर हो। हाँ? सर ये सर को समेशन की ग्रेटर होनी चाहिए। ये आ जाता है, ठीक है? अच्छा, but I'm simply saying कि दोनों को फिर assume करो, ठीक है? वो दूसरे वाले किसी में ठीक हो जाएगा, don't worry, ठीक है? अच्छा, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये कहता क्या है? जब मैं k की वैल्यू 0 लेता हूँ, तो ये क्या बनेगा? बताओ ना? m choose 0 और n choose प्लस i क्या बनेगा? m choose 1 और ये क्या बनेगा? n choose प्लस i क्या बनेगा? m choose 2 और n choose क्या बनेगा? प्लस so on, आखिरी चीज क्या होगी? ये हो जाता है m choose r और ये हो जाता है m choose r माइनस r ना, 0 दे, है ना? ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी के बराबर है, by the way, this is just try to visualize, imagine यही क्वांटिटी अगर आपने algebraically प्रूव कर दी, लग पता जाता हो, तो जनरल प्रूव करना है आपको, ये algebraic सॉल्व करते हुए एक बार दुनिया आपकी शाम हो जाती है, ठीक है? हमने लेकिन आपको प्रूव करना है, प्रूव करेंगे, we will go to write 2-3 lines और उसके बाद हमारा प्रूफ है, and the picture will be absolutely clean. Yeah, you know the quantity exactly set. Okay? Let me show you. Okay? Imagine m are number of boys, n are number of girls in your class. Okay? r is जितने की आपने टीम सेलेक्ट कर दी. For example, 50 लेट से खवातीन थी और 50 लेट से बॉयज थे. 50 और m ठीक है, या कुछ भी कर लो, उसको 50 कर लो, उसको 100 कर लो, या 10, ठीक? आपने 10 लोगों की टीम सेलेक्ट की, 8 लोगों की टीम सेलेक्ट कर दी, ठीक है? So first imagine कि आपने बस 10 लोगों की टीम सेलेक्ट कर दी. There are how many possible ways? ये बात सुने? बोलिए कितने पॉसिबल वेज हैं हमें एक टीम सेलेक्ट करने के आर तक थी? m plus n choose r, okay? m boys है, n girls है, दोनों को ऐड करो, हमें बस r सेलेक्ट करना है, हमें कोई डैम किया है कि वो boys है या girls है, ये बस ना? All right.
Now look at the right part. Okay? There are how many ways I can choose? I can choose a team. Okay? Of how much length? R length. Okay? One way is कि मैं boys में से एक भी select ना करता और सारी girls में से. But are these the only ways? One another possible way is कि मैं boys में से एक select करता और सारी खवातीन select करता. ठीक है? नहीं सर एक सर ये आठ बाकी मैंने बोला ना. सुन लिया. ठीक है? उसके बाद क्या है? दो इन सबको ऐड अप करें हमारा. That will lead us to total number of success. कितने success? So this quantity is actually equal to. जी. क्या मतलब? ठीक है? All right. ठीक है? This is the idea. How many ways to select a representative group of R from a class containing M boys and N girls? ठीक है? तो आप लेफ्ट की क्वांटिटी की पूरी आर्गुमेंट देंगे और राइट की क्वांटिटी. ठीक है? तो याद रखना, प्लीज. This should be very easy to prove. This should be trivial to prove now. Why? यानी n plus N plus n. यानी वो जो हमने n plus n कहा था, ये n plus n हो गया, है ना? यानी boys भी 15 और girls भी 15. तो ये हो जाएगा n plus n. Choose आपने कितने select करने हैं जी? n select करने हैं. half select करने हैं. ठीक है? तो इसका मतलब k हमारा 0 से लेकर n तक जाएगा. ओके? यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे एक आएगा n choose. यहाँ पर एक चीज आएगा n choose k, दूसरा आएगा n choose n minus k. And n choose k और n choose n minus k दोनों बराबर. So which means n choose k square. You understand? See? All right. Let's do the last example. Okay, last. Yeah, last one. Okay. जी. Yeah, this is a very classic example of combinatorial argument. अच्छा, imagine करें. So again, I will go going away. Again, I will go tell you a story. Okay? तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि मैंने n+1 choose r+1. Okay? और ये है summation. The summation is beginning from j is equal to r. Okay? J is equal to r. And it is going up to n. Not even n+1. It's going up to n. Okay? And now look at this. It is saying j choose r. Let's try to write it down. जब भी कोई इस तरह की बात हो ना, और it's always a good idea कि इसको जब summation अगर लिखी हुई हो, उसे expand करके लिखें. So for example, ये क्या हो जाएगा? n+1 choose r+1. ठीक है? Is equal to ये हो जाएगा क्या? ये निकाला हो जाएगी r choose r. ठीक है? Please. फरीद. इतना तो हमारा concentration प्लस ये क्या हो जाएगा? r+1 choose r. ठीक है? फिर क्या हो जाएगा? r+1 +2 choose r. ठीक है? फिर क्या हो जाएगा? r+3 choose r. कहाँ तक जाना है हमने? n choose r. Okay? Okay. Let me tell you the story. The story is, imagine कि आपके पास एक बिट स्ट्रिंग है. कितने लेंथ की? n+1. ठीक है? n+1 लेंथ की बिट स्ट्रिंग. What is left quantity equal to? What is left quantity equal to? पहली जो है जगह वो सेम हो. हाँ?
पहली जो उसकी अल्फाबेट है जो भी है बिट्स एन चूज हमें लगता है एन चूज आज का एक और था कि इन बिट स्ट्रिंग में से कितने वंस है यही मतलब है ना हमने बिट स्ट्रिंग में से कितने वंस हैं हम लोग काउंट करना दोनों मार्क्स के बराबर आता है एन चूज आर के बराबर आता है तो ये क्या ये लेफ्ट क्वांटिटी ये कह रहा है कि मेरे पास n+1 बिट्स थी और मैंने कितने चूज किए r+1 जो है वो बिट्स में से क्या है जीरो भी कह सकते हैं जो गलती आता है हम लेट्स से रिजल्ट्स की बात करना शुरू करते हैं तो व्हाट इज n+1 choose r+1 there are how many bit strings possible there are how many bit strings possible जिसमें क्या है जिसमें r+1 क्या है r+1 bits जो है वो क्या है ones है out of how many okay all right now look at this that quantity now look at this अब मैं इसी को एक और तरीके से काउंट करूंगा okay now look at all those strings उसमें जीरो वाली काउंट हो गई होंगी यार नहीं मैं हम वन को कनेक्ट लेते हैं मैं या जीरो करते हैं ठीक है मैं वन करेगा ओके मैं कह रहा हूँ what is this quantity equal to कि out of n+1 bit strings length मैंने उनमें से कितनी select कितनी ones हैं उनमें r+1 ones हैं okay now look at this now what I count is the following look at the first so अब जितनी भी मेरी bit strings होंगी so by the way इसमें कौन सी मेरी valid strings आएगी अगर मेरा फॉर एग्जांपल r की वैल्यू 2 है तो मेरे पास और n की वैल्यू लेट्स से 7 है तो उसका मतलब मेरे पास कितनी बिट लेंथ की स्ट्रिंग है 8 बिट लेंथ की स्ट्रिंग है ठीक है क्योंकि n की वैल्यू मेरी कितनी थी 7 थी और अगर मैं कहूं मेरी r की वैल्यू 2 है तो r की वैल्यू 2 का मतलब मेरा बेटा क्या है कि मेरे पास 3 जो है वो बिट्स जो होंगी वो क्या होंगी 1 ठीक है इसका मतलब क्या है इसका मतलब क्या है इसमें ये स्ट्रिंग आ सकती है 1 1 1 1 1 0 0 0 0 ये स्ट्रिंग इसमें आ सकती है ये स्ट्रिंग नहीं आ सकती क्यों नहीं आ सकती 3 वंस क्योंकि इसमें 3 वंस होने चाहिए ओके तो यानी कि इसमें जो लीगल बिट्स जो स्ट्रिंग्स हैं वो सिर्फ वो हैं जिनमें कितनी बिट्स 1 होंगी r+1 बात कर रहा है 1 ठीक है और नाउ लुक एट दिस लेट मी काउंट फर्स्ट all those strings let me count all those strings जिसमें आखिरी बिट जो 1 होती है ना आखिरी बिट जो 1 होती है वो होती है सबसे पहले कौन सी लोकेशन पर r+1 पोजीशन पर ओके यानी कि मैं कहता हूं कि मैं सबसे पहले वो वाली बिट स्ट्रिंग्स काउंट कर लेता हूं कौन सी बिट स्ट्रिंग्स काउंट कर लेता हूं कि जिनपे r+1 पोजीशन पर 1 आ रहा है r+1 पोजीशन पर 1 आ रहा है और उससे पहले सारी की सारी कंज्यूम हो गई which means हमारा ये which means अच्छा r+1 लोकेशन पर मेरा क्या आएगा 1 आएगा और इससे पहले कितनी पोजीशंस आ चुकी हैं r पोजीशन आ चुकी हैं और उन r में से कितनी मैंने 1 सेलेक्ट कर दी r ही सेलेक्ट क्योंकि टोटल जो मैंने सेलेक्ट करनी है वो r+1 है मैं कह रहा हूं लुक एट दोस स्ट्रिंग्स जिसमें मेरी आखिरी बिट जो 1 होती है वो पहले किस जगह पर होती है वो r+1 यानी r+1 की वैल्यू अगर फॉर एग्जांपल बेटा मैं कह देता हूं ये मैं r+1 की वैल्यू फॉर एग्जांपल 6 है और इसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल 10 है तो मैं कह ये रहा हूं कि पहले मैं सिर्फ वो स्ट्रिंग्स निकाल लेता हूं जिसमें सारे वंस 6 पोजीशंस तक आ जाते हैं सारे वंस मेरी 6 पोजीशंस तक आ जाते हैं गली मुके यानी आखिरी जो मेरा 1 आता है वो 6ठी लोकेशन पर आता है जब 6ठी लोकेशन पर आता है तो उसके बाद तो कोई 1 नहीं आ सकता इसका मतलब है मेरे पास जो बाकी 5 पोजीशंस हैं उन 5 की 5 पोजीशन पे क्या आया होगा 1 है इसलिए पहले वाली पे 1 है और अभी तो इसका मतलब है r+r यानी इस r+1 पोजीशन को मैंने फिक्स कर दिया वो मेरी आखिरी बिट थी क्या थी आखिरी बिट थी उसके बाद मेरे सारे जीरो थे इससे पहले मेरे कितने 1s आ सकते हैं हाँ इससे पहले मेरे r+1 that quantity is this okay now I fix the r+1 to be the next place which means
कि अब मेरे पास कितनी पोजीशन बाकी रह गई हैं r+1 और उन r+1 में से ये पोजीशन तो फिक्स हो गई, ये r+2 पोजीशन है ना, तो कितनी पोजीशन रह गई, ये r+1 पोजीशन रह गई, इनमें से कितनियों को मुझे 1 करना है, दोबारा r को 1 करना है। फिर मैं अगले में जाता हूँ, अब क्या है कि अब मैं r+3 पोजीशन पे आ गया हूँ, कितनी रह गई है बाकी r+2 में से कितनी मैंने 1 सेलेक्ट करनी है, r सेलेक्ट करनी है, क्योंकि ये वाली पोजीशन फिक्स हो गई। I will go up to the last bit. When I go to the last bit, that will be n+1 bit. Look. वो तुमने zoom out किया? इसको ये नजर आ रहा है? जब मैं move करूँ तो उसको zoom पीछे कर देगा। लगने के zoom out हो गया। अच्छा। So when I move to the last bit, we know what is the last bit. Last bit क्या है हमारी? n नहीं है। n+1 bit. So n+1 bit पे जब मैं पहुँचता हूँ, तो मेरे पीछे वाली कितनी पोजीशन रह गई है? n पोजीशन रह गई है, उनमें से कितनी को हमने fill करना है 1 से? ठीक है? So this quantity is actually counting what? Counting n+1 में से कितनी r+1 जो है वो 1 से। Okay? एक ये सवाल है, थोड़ा सोच लीजिएगा कि मेरे ख्याल में आपका जो वीकेंड पे क्विज आ रहा है उसमें से सवाल होगा व्हाट अबाउट दिस, ये कैसे काउंट करें? सर कंप्लीट रोल आउटपुट सर नहीं है, वैसे परमिशन कैसे तो सवाल है वो सर 6 और सर के पर ये पर याद है हमने पहले आपका A B C को इकट्ठा रखा था। ये में गया। व्हाट इफ मैं कह रहा हूँ A पहले आएगा, फिर B आएगा और B उसके बाद भी आएगा। हाँ? ऐसे हो सके A बाद में आए, B पहले आए। ठीक है, यानी सीक्वेंस में आएगा, लेकिन सीक्वेंस में कितना आगे आएगा वो मैं नहीं पता। इकट्ठे भी आ सकते हैं। हाँ? इकट्ठे भी इकट्ठे भी आ सकते हैं, इकट्ठे नहीं भी आ सकते, लेकिन इतना पता है, पहले A आएगा, फिर हमारा B आएगा, फिर हमारा असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग इंडेक्स ऑर्डर में आएगा। अब वो कितना असेंडिंग में हमें नहीं पता, दरमियान में गैप कितनी भी चीज का होता है। ठीक है, 4 प्रॉब्लम। ऑलराइट, ये कठिन नहीं है। चलो जी, थैंक यू।